everyone. Welcome to How You Got Placed Season 7, or we also like to call it Hi. Today we have incredible guests, Prasun sir and Anshu Joshi sir, here with us. They have secured amazing placements at Mercari, Tokyo, Japan. Also with Prasun sir securing Western Digital. So let's get into the episode. Can you have brief introduction about yourself so Yeah, that hello, audience hello. could get Hello everyone, hello Arti. So I'm a full stack developer and also having some interest in blockchain development. I've also explored in DevOps. So as because my Mercury major role है, so that's basically DevOps role में ही है. तो DevOps भी थोड़ा बहुत देखा है और blockchain enthusiast बोल सकते हो overall and kind of DSA and वो भी थोड़ा सा in touch. So this is all about. And the dancer, of course, पूरा college को पता है. Yeah, so hello everyone and Aarti. I'm Anshu Joshi. I'm from BCS 21 batch. Um, I'm a full stack developer, so I've explored everything from front end to back end. And also, apart from that, I've explored in different domains such as blockchain and DevOps. Most of these stuffs I have explored during my internship. So, like, I've done 2 internships in the past and also one international internship at Tokyo, Japan. And also I currently hold an offer at Mercari, Japan. So yeah. And so since you mentioned about your internship, can you give more insights about your Mercari internship, especially how did you crack it? How was the journey? श्योर सो मरकरी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स वगैरह निकालती रहती है. सो लाइक उनका एक फॉर्म रहता है जो लाइक ऑल ओवर द ईयर ओपन ही रहता है. सो एनीवन कैन अप्लाई एनी टाइम. उसमें तो उसके सिवाय दे हैव अ वुमेन हैकाथॉन एज वेल. And addition to that, they also have a Mercari build program, right? So like these are some of the programs by which you can apply in Mercari specifically. I applied through the form which is open all year long. So I applied to it using a referral. So we have a lot of seniors from our college who are currently placed in Mercari and are currently working in Mercari. So I got their referral, and after that I received a link, an OL link. It was an 1 hour online assessment which contained 3 questions, and it was like a lead code easy, medium, hard to be solved in 1 hour. So if you're able to solve like each question like 100%, then only you will get to the next round. So like it happened that मैंने एक बार नवंबर में अप्लाई किया था. मेरे से 2.5 क्वेश्चंस बन गए थे. थर्ड क्वेश्चन में टीएल आया था. ठीक है, लेकिन मुझे नेक्स्ट राउंड का नहीं आया बिकॉज मरकरी आस्क फॉर 100% करेक्ट आंसर्स. सो दिस इज देयर लाइक मैंडेटरी थिंग कि 100% करेक्ट आंसर्स होने चाहिए. सो वंस यू पास दिस राउंड, इसके बाद यू गेट a machine coding round which is with an engineer who is currently working there. So as my role was for specifically for front end role, so they asked me a React question. It was like a basic problem statement and I had to solve it in like 1 hour, which I solved in half an hour. So and the discussion continued about my interests and how do I use DSA and all in my development. If you pass through this round, so like this round specifically is is inclined to your domain. अगर backend है so they ask about backend stuffs. DevOps है तो DevOps के बारे में पूछते हैं. Front end है तो they usually give a question problem statement which you have to code specifically in front end. If you pass this round, then there is one last round which is managerial and cultural type of round. This more basically values and all, because it's a Japanese company, so they value their culture a lot. So yeah, so in that year they usually ask about their culture and values, how you incorporate those in your daily work and everything. So yeah, so once you pass all these 3 rounds, you get an offer. So yeah. Congratulations. Thank you. Both of you have an impressive record of participating and winning in hackathons. Could you share a memorable hackathon project as well?
सो इसमें तो हम दोनों ने साथ में किया था भाई। उसमें गिग्स फॉर गिग्स फॉर इंडिया हैकाथॉन में, उसमें हम लोग इंस्टीट्यूशन लेवल पार कर गए थे और रीजनल लेवल था, और उसमें हमें जाना था भुवनेश्वर गए थे दोनों साथ में, Yeah. बस हम दोनों ही गए थे। और फुल स्टैक प्रोजेक्ट था हमारा, तब फुल स्टैक पे स्पॉटिफाई नाम का प्रोजेक्ट बना था। तो हाँ, इफ यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट टेक स्टैक यू शुड चूज अगर हैकाथॉन जीतना है ये वो, तो एक तो ये वाला हैकाथॉन था जो हमने गया था, तो हमने रीजनल राउंड तक गया था, राइट। तो उसके बाद मैंने पर्सनली ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे कुछ ग्रुप्स प्रोजेक्ट था मृगांक लोगों के साथ, तो मैंने उनके साथ बनाया था। तो युवा हैकाथॉन में हमें बेस्ट प्रोजेक्ट इन ब्लॉकचेन का मिला था, और फिर हमें उसमें मिला था एक हैक बाइट 2 है जब IIIT जबलपुर में होता है, तो उसमें भी हमें स्पेशल मेंशन मिला था। तो मुझे तब समझ आया कि बस फुल स्टैक से हैकाथॉन्स नहीं जीते जा सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि यू कांट, यू हैव टू डू एक्चुअली सम वेरी गुड प्रोजेक्ट ऐसा फुल स्टैक में जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फर्स्टली योर आइडिया शुड बी समथिंग विच इज एक्चुअली सॉल्विंग अ रियल लाइफ इशू, you need to do a lot of research after it। तो रियल लाइफ अगर सोल्यूशन हो रहा है प्रोजेक्ट का हमारा, तो फिर टेक स्टैक डजंट मैटर मच। सेइंग दैट, अगर तुम ब्लॉकचेन, AIML मेनली, और अगर AR/VR हो सकता है भाई, AR/VR एक आता है पूरा, मतलब उसी में फोकस हो जाता है, और AR/VR हमेशा जीतता है, ठीक है। तो वो अगर कर पाओ टेक स्टैक में तो वो बढ़िया होता है। नहीं तो अब थोड़ा सा अगर एम है कि जीतना है वो सब, ब्लॉकचेन, AIML, दीज आर टू वेरी बज वर्ड्स, राइट। सो और सभी फुल स्टैक के बाद सीखते ही है ये, तो कोई एक डोमेन चूज कर लेना जो तुम्हें पसंद हो। जैसे मुझे ब्लॉकचेन पसंद है, आई एम नॉट इनटू दैट AIML मैथ्स गाय, उतना वो नहीं हूँ, सो आई डिडंट गो दैट वे। और मैंने अपने सब्जेक्ट्स भी कॉलेज में वैसे लिए हैं, या फिर अपना प्रोजेक्ट का स्टाइल, या फिर अपना प्रोजेक्ट पूरा धीरे धीरे मैंने डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए बेस्ट चैनल वही डी ऐप वगैरह है, यूट्यूब वगैरह चैनल, तो वहां से सीख के फिर खुद के प्रॉब्लम्स, हाँ। एंड द थिंग इज यूनिक प्रॉब्लम्स ढूंढो। जो यूट्यूब में पढ़े है, तुम मत सोचो कि ई-कॉमर्स लेके जाओगे फुल स्टैक में और तुम जीत जाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम्हें एकदम रियल लाइफ प्रॉब्लम लेना है और यूनिक लेना है, और वो प्रोजेक्ट लेके जा सकते हो। और टेक स्टैक थोड़ा सा अगर AIML ब्लॉकचेन ओरिएंटेड होगा तो दैट्स बेटर। Also, guys, एक बात समझो कि when you participate in hackathon, it's mostly for learning, at least in the initial parts. So हर बार ऐसा नहीं होता कि तुम winning के लिए जाओगे. At least you have to participate. क्योंकि जैसे DSA वाले लोग बोलते हैं, you like practice through CP, right? Developers That's all. practice through hackathons. So that's one of the main things कि जैसे हमारा participate. जो था प्रोजेक्ट था वो Spotify वाला, उसमें गूगल क्लाउड हमें उतना नहीं आता था तब। हाँ, हमें वो हमारा- मैंडेटरी था कि गूगल क्लाउड में हमें इंस्टेंस पे हमें वो Yeah. करना है, तो हम दोनों ने मतलब गूगल क्लाउड भी हमारे लिए नहीं आता। तो मे बी दैट वाज द इनिशियल ब्रेक पॉइंट जहाँ पे हमें था कि भाई फुल स्टैक से आगे बढ़ता है, डेवऑप्स में जाता है भाई, या फिर उसमें करता है। तो ऐसा कोई नहीं होता कि घर में बैठ के मन किया पढ़ना चालू किया, वो बोरिंग होता है भाई, ऐसे यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते तुम। कोई नीड होता है और उसके लिए तुम कर रहे हो ना, देन इट्स लाइक तुम आगे बढ़ पाते हो, नहीं तो नहीं हो पाता। चैलेंजिंग चीजें लेना पड़ेगा। This is a very insightful sentence. So, Anshu sir, your journey has secured multiple internships, including Beanstore and Dashlane. How did you secure them, and how did you maintain with academics as well? How did you balance both? Okay, so like I have worked, like you mentioned, I have worked in 2 different internships in the past, and like in one of the internships I worked as a full stack developer, और दूसरे internship में I worked as a front end developer. So the thing is, how I like acquired it, it was like during like I guess 5th semester. It was end of my second year. Most of my seniors were telling कि experience, like if you want to add one experience in your resume, you can start applying now. So I started applying at that time, and like in the next semester I got an internship. So like there I worked as a full stack developer in the first company, which was Blink Store. So उसमें I wouldn't say that मैंने बहुत कुछ अलग काम किया या कुछ भी. It was mostly for me about learning कि काम कैसे करते हैं, ठीक है, कि like when someone gives you task, how you need to take notes of everything, है ना, how you need to like prioritize some of the tickets compared to others, right? So my first internship was whole like
focused on that. They were expecting me to do a lot of things, but for me it was mostly about कि चीजों को prioritize कैसे करते हैं, which helped a lot for me in the second internship. There I could like catch up with their pace a lot more faster, and there I worked as like for 7 months, and after that I worked in Mercari for 2 months, but that was full time. But जो मेरी पहली internships थी, those were remote. So like I had to do those with academics. So like उनको भी पता है कि तुम्हारे like academics चलता है, so they like if you have exams or something in between, they usually give you like 1 week off and all. तो उसमें दिक्कत नहीं आती. Main problem आती है कि तुम prioritize कैसे कर रहे हो कि like मुझे ये टास्क करना है, मुझे ये क्लास की टाइमिंग में जाना है, तो वो तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा. तो मेरे केस में मैं मोस्टली काम रात में करता था, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन में कर लेता था. और जैसे वो लोग लाइक कंपनी वाले सैटरडे संडे छुट्टी देते हैं, बट इफ यू लाइक वांट टू क्लियर ऑल योर बैकलॉग्स ऑफ companies, then you need to like do some work on Saturday Sundays as well, right? So yeah, like once you start doing it, you'll like every person is different, right? So the thing is, you'll get to know your pace when you start working. So it's all about experience. So yeah. Prasun sir, your role at Courses has involved mentoring over 1,000 students. So how did you mentor them, and what was your role at Courses? So Court Feast में it was like I was searching for an internship. तब I guess वही season था ना, I guess कितना सेमेस्टर था, 5th सेमेस्टर था, 5th सेमेस्टर था. तब हम दोनों ने इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहा था. तो इट वाज लाइक आई वाज मेनली लुकिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर रोल. अब क्योंकि काइंड ऑफ मे बी मेरा स्टेज फियर नहीं है, बिकॉज आई एम डांसर, बोलने का वो भी है, आई गेस कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, तो इसलिए आई अप्लाइड फॉर द मेंटर रोल. आई थॉट लेट्स ट्राई, क्या होगा देखते हैं. तो उसमें फिर उन्होंने टास्क दिया एक छोटा सा कि एक प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ कि तुम बच्चों को कैसे पढ़ाओगे. तो उसके लिए एक वीडियो बनाना था, तो वो वीडियो बना के दिया. और उसके बाद फिर एक लाइव इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने बोला, जो मेरा इंटरव्यू था, ही टोल्ड मी कि टू डू लिस्ट बना के दिखाओ एकदम सामने. बेसिक से टू डू लिस्ट था, तो वो बनाया. अब बनाने के बाद उसने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो कि तुम एक बच्चे को जब समझाओगे तो कैसे समझाओगे. तो हम लोग ना कभी कभार जब भी सीखते हैं या फिर सीख रहे हैं जो भी, तो हम लोग जो फोकस पॉइंट्स है, इंट्रिकेट पॉइंट्स है, जिससे मतलब शॉर्टकट्स हो गए या फिर कुछ मेन पॉइंट्स है, अब बहुत ओवरलोड हो जाता है भाई. ऐसे यूट्यूब देखते देखते ट्यूटोरियल लूप में पड़ जाते हो, तो उसको कॉन्साइज करके बताना इज ऑल्सो एन आर्ट, आई गेस. तो वो मैंने इस जर्नी के थ्रू सीखा कि कैसे एक पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ के एकदम कॉन्साइज में और एकदम ऐसे कि जितना नेसेसरी है, और ये समझ के ये इसको इस बंदे को ये समझ आ जाएगा. मतलब एक बहुत बड़ा एकदम थ्योरी ना बताते हुए जो स्टेप्स है वो एकदम प्रॉपर बताओ और फिर उससे एक्सरसाइज कराओ. तो ये स्पीकिंग स्किल्स वाला सीन हो गया. तो वो मेरे को जाते जाते ये इंटर्नशिप में लग गया था. तो लाइव क्लासेस होते थे हमारे, तो 30 बच्चे आते थे, तो 30 बच्चे हर एक बैच में आते थे. सुबह शाम क्लासेस रहते थे, 3 घंटे के क्लासेस. तो उसमें मेरे को कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता था. वो भी बोलते थे, पूछते थे क्वेश्चन, मैं भी बोलता था. तो और फिर एक तो कॉन्सेस करने बोलना होता है, प्लस उनके डाउट्स भी क्लियर करना होता है. तो इससे स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हुआ मेरा. तो या आई विल कंसिडर दिस इंटर्नशिप एज वन ऑफ माई वेरी गुड एक्सपीरियंस, कारण क्योंकि मतलब ऐसा लाइक स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ये मेरे को मरकरी में इंटरव्यू क्रैक करने में या फिर सैंडिस्क में भी इंटरव्यू क्रैक करने में, अपना जब ऑन कैंपस हुआ था, आई लिटरली वेंट वेरी मतलब अंडर प्रिपेयर्ड. आई वाज लाइक ये होगा कि नहीं होगा, अचानक से नाम लिस्ट आ गया, शॉर्ट लिस्टेड है ना, सो उतना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था. बट इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्पीकिंग स्किल्स. और मेरे को डेटा इंजीनियर रोल में आई डोंट हैव मच ऑफ एक्सपर्टीज, एज आई सेड आई एम इनटू अ ब्लॉकचेन एंड डेवलपर रोल, but still I got selected in data engineer role in SanDisk. So it's all because how I deliver, what I know to the person. If you can't deliver your stuffs, if you can't make the other person understand what you're speaking, and with that I think it's very important, one should know, when I speak, one should take proper pauses. Instead of speaking like बोलते जाओ, proper pause लो, एकदम बोल लो, और फिर जो चीज तुम्हें लगता है कि ये important है उसको जोर से बोलो, emphasize कराओ, और जो तुम्हें लगता है कि वो है तो उसको धीमा.
अप्स एंड डाउन्स होना चाहिए और पॉज होना चाहिए, जैसे डांस है, डांस में मतलब सेम लेवल पूरा एनर्जी में अच्छा डांस करो पसंद नहीं आएगा, पर आप कभी स्लो करो कभी हाई करो, अप्स एंड डाउन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी स्पीकिंग स्किल्स हो, तो दिस इंटर्नशिप हैज टॉट मी दिस वेरी मच. Thank you. And so say you just mentioned that you are a front-end developer in Mercari, and also you've done a full-stack developer in your internships as well. Yeah. And what got did you get interested into front-end developer explicitly because of Mercari, or your interest in that? Yeah, so like the thing is, like I said that during college life you explore a lot of stuffs, right? Mhm. So you explore like front and back end kya kya hota hai, right? Mhm. But like that's how you like figure out कि where your interest lies, right? So like मेरा तो like starting से ये था कि मुझे creativity काफी पसंद है, like कि how things look uh, like in the front end, in the front part, how things look, right? So ऐसा नहीं है कि मुझे बस फ्रंट एंड करना ही है, बट इट्स जस्ट दैट कि वहां पे आई फील लाइक मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, सो आई एक्सप्लोर देयर अ लॉट मोर, राइट? बट एक मिसकंसेप्शन ये काफियों का, जब हम फ्रंट एंड की बातें करते हैं तो लोग बस अटक जाते हैं HTML CSS में, हाँ. है ना, विच इज लाइक विच एंट फ्रंट एंड ब्रो, वही. है ना? It's the logic that you write in React and the integration with backend is also comes under front end भाई, तो वो integration वाली part भी important होता है. बस बोलते हैं मुझे front end पसंद नहीं है, डिजाइन विजाइन करना है ये वो, तो वो मुझे गलत लगता है, क्योंकि वो front end का I guess 20% है बॉस. हाँ, उसके बाद वो जो use state hooks हो गया, या फिर मतलब क्या वो optimize करने के लिए use effect hook, क्या बोलता है use cookie, यूज मेमो वाले हुक्स हो गए, जो ऑप्टिमाइज करते हैं, जो मतलब तुम्हारा जो विंडो आ रहा है ना उसको कितना रेंडर करने में, मतलब कितना फास्ट तुम्हें लोड हो रहा है, तो वो काम भी आता है तुम्हारे फ्रंट एंड में, लॉजिक भी आता है तुम्हारे फ्रंट एंड में, फिर तुम्हारा इंटीग्रेशन भी आता है फ्रंट एंड में. फ्रंट एंड इज मेनली दिस एंड नॉट जस्ट CSS. जल्दी जल्दी HTML CSS 1-2 हफ्ते में निपटाओ, फिर आगे मेन लॉजिक बिल्डिंग में जावास्क्रिप्ट में अपना काम करो भाई, यही करना होता है. तो लाइक इंक्लूडिंग इन दिस वही है कि for me, if you ask me, तो like front end is somewhere where like I was more comfortable in exploring more stuffs, है ना? और like front end is vast, तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है उसमें. I'm still exploring, अभी भी मुझे नई नई चीजें पता चलती हैं रोज, right? So and the thing is, since I have interest in those, तो जो भी like roles वगैरह आते हैं, I am like in the past I was able to crack those interviews, एंड उस हिसाब से मेरा एक फ्रंट एंड टाइप का रिज्यूमे बन गया, तो उस हिसाब से मुझे फ्रंट एंड के रोल्स ज्यादा अच्छे से मिलते हैं, राइट? नाउ स्पीकिंग अबाउट दैट, यू लाइक some people just get like stuck in just one tech stack, so like फ्यूचर में जाके कंपनी विल आस्क लाइक डिफरेंट टेक स्टैक. फ्रंट एंड में लाइक मेरी पहले इंटर्नशिप में व्यू था, नेक्स्ट इंटर्नशिप में रिएक्ट था, सो इट लाइक चेंजेस, बट व्हाट यू नीड इज यू जस्ट नीड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि फ्रंट एंड कैसे काम करता है, राइट? एंड टेक स्टैक चेंजेस, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. सो या, Since you mentioned many internships and you cracked all good stuff, I really want to know what resources you followed. Are those paid or unpaid? Just free tutorials, or did you learn from your friends? okay. So like for me, I would say if you are like getting into something new, for like if you're a complete beginner, so like Free Code Camp is a channel in YouTube which like for beginners it's really good. So they have a lot of one shot videos. It's not like one shot videos which is only 40 to 50 minutes. They explain everything but in a very beginner friendly way. सेइंग दिस भाई, सबको इंग्लिश हजम नहीं होता है, मेरे को तो नहीं होता उतना ज्यादा, मेरे को हिंदी में चाहिए होता है कुछ कुछ. पीयूष गढ़ का बहुत सही है, उससे पढ़ सकते हो. ऑफ कोर्स FCC अपना फ्री कोड कैंप, तो वो तो है ही अच्छा है, पर पीयूष गर्ग बहुत फ्रेंडली वे में एज अ बच्चा समझ के पढ़ाता है. तो आई गेस फ्री कोड कैंप इज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल. आई गेस द ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस इज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो कि अभी अभी जेई दे के आया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट जेई दे के आया है, ठीक है? तो अगर वैसा वाला माइंडसेट है तुम्हारा, तुम्हें अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं जाना है, तो यू कैन गो फॉर पीयूष गर्ग हो सकता है, 6 पैक प्रोग्रामर हो सकता है. हिंदी में बहुत अच्छे से मतलब देसी वे में समझाने वाला सिस्टम है. पर अगर तुम थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में, बिगिनर टू एडवांस, पूरा बिगिनर भी नहीं रहता भाई, बिगिनर टू एडवांस होता है FCC. तो FCC इज दैट. आई वुड सजेस्ट FCC
Pre-code camp for intermediate to advanced people. Beginner people will be Piyush Garg pre-code camp, पीयूष गर्ग एंड सिक्स पैक प्रोग्रामर. और ये तो हो गया अपना फ्रंट एंड बैक एंड में. Also talking about English audience, उनका भी एक बार बता देते हैं. Free Code Camp is what I followed. Apart from that, Web Simplified like is a person. वो like he teaches everything in depth और वो बताता है like the beauty of a particular concept, right? That is one thing I followed. And the next thing, the Net Ninja is also one of the channels which has a lot of playlist and they also explain in a very good way. So for English people, they can follow these YouTube मैंने channels. रिएक्ट स्टार्ट किया था नेट निंजा से. Just to get started. Yeah, like किसने रिकमेंड किया था? yeah. Prasun sir, you have represented our college in multiple stages across India, and you have participated in many dance competitions and also won many dance competitions. How did you manage all this? Obviously, this requires a lot of hard work and dedication. And how did you manage this with academics? And also, you've secured these many internships and placements. So, how did you manage the upskilling part as well? हाँ, तो एक बार मैं बता दूं कि मेरा एक टाइम पे कैसा सिचुएशन था हॉच पॉच वाला. एक तो फेस्ट जाता रहता हूँ, हर कॉलेज आईआईटीज का फेस्ट गया हुआ मैंने, यू नेम इट एंड आई हैव वेंट देयर एंड वॉन. तो वैसा वाला सिचुएशन है, मतलब हर महीने जाना होता है, वो तो है ही. प्लस एक टाइम पे मेरा 2 इंटर्नशिप साथ में था. मतलब इट्स नॉट अ बड़े बड़े इंटर्नशिप जो मरकरी सैंडिक्स के, उसके बाद तो अभी तो जाऊंगा मैं, उसका बात नहीं कर रहा मैं. छोटे जो भी कोट फिस्ट हो गया, सेजा हो गया, मैंगो जिली हो गया, जहाँ पे मैंने काम किया था. तो एक टाइम पे ऐसा था कि 2 इंटर्नशिप्स है, तुमको सिखाना है, तुम लोगों को क्लास लेने आना है क्योंकि अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है. और फिर मेरा सोलो है कहीं पे घूमने, मतलब वहां पे रिप्रेजेंट करना है, कंपटीशन है, तो दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो वो तो मिस नहीं करना है. प्लस एकेडमिक्स भी है, तो आई हैड एकेडमिक्स, अपना इंटर्नशिप वाले चीजें जो कि 2 साइमल्टेनियसली, और डांस. अब इतने सारी चीजें एक इंसान के लिए कैसे, सभी पूछते हैं कि कैसे पॉसिबल है. 24 घंटे ही मिलते हैं सबको. तो इसके लिए द बेस्ट रूल इज टाइम टेबल. अब टाइम टेबल के लिए क्या करता हूं मैं, प्रॉपर स्लीप शुड बी देयर. मैं बहुत सोता हूँ, तो प्रॉपर स्लीप 8 घंटे का, 7 घंटे का, 6 घंटे का इज मिनिमम. 6-7 घंटे का सो हर दिन. तो वो स्लीप शेड्यूल हमेशा प्रॉपर होना चाहिए. फिर अर्ली बर्ड तो जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी उठो. नहीं तो जैसे तुम्हारा शेड्यूल है वो शेड्यूल बनाओ. शेड्यूल बनाने के बाद तुम अभी तो 75% अटेंडेंस यू हैव टू मैनेज, राइट. तो उसके लिए क्लासेस तो जाना ही पड़ेगा. अब मैं क्लासेस जाके, मैं ऐसा करता था, देखो सीजीपीए आ जाता है मेरा, एसजीपीए 8.64, 8 पॉइंट प्लस आ जाता है. एक बार 9 एसजीपीए भी आया है और सीजीपीए 8.4 ही है, ठीक है. तो सीजी इज गुड. 8.4, 8 प्लस रखो, सीजी इज गुड, उतना चाहिए होगा. अब उसके लिए क्या मुझे पागलों की तरह मैं पूरा साल एकेडमिक्स पढ़ूंगा? नहीं, मैं पागल नहीं हूं. मैं एक हफ्ता पहले पढ़ूंगा एकेडमिक्स. तो मैं क्लास में जाके पीछे बैठ के हेडफोन्स लगा के मैं डेवलपमेंट करूंगा, क्योंकि और मुझे डीएसए भी करना है, राइट, क्योंकि अपना अपस्किल भी करना है. तो एक बंदे को अपस्किल भी करना है, इंटर्नशिप भी करना है, डांस अगर ये सब करना है, तो मैं क्या करता था कि सुबह उठ के किया, नाश्ता वास्ता करके कॉलेज गया, जाके हेडफोन्स लगा के मैं हमेशा क्लास में नहीं सुनता था उतना ज्यादा, मैं हेडफोन्स लगा के हमेशा डेवलपमेंट के वीडियोस देखता था. उसमें फ्री कोड कैंप के हो गए, बाकी जो भी चैनल्स इसने रिकमेंड किया. ब्लॉकचेन में अगर होगा तो डैप यूनिवर्सिटी है, तो उनका अगर देख सकते हो. तो मैं उनका वीडियोस 2x में देखता था, कुछ भी होता था नोट्स लिख लेता था. तो वो एक जो था, मैं एक तो है कि मल्टीटास्किंग कर पाता हूँ, बाकी भी मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि कर पाता हूँ नहीं, ऐसा तुम्हें लोड लेना पड़ेगा भाई अपने ऊपर. तो पहले हार्ड लगेगा मल्टीटास्किंग, फिर इजी हो जाएगा. तो मैंने बहुत डांट भी खाया है ऐसे, तो हेडफोन्स लेके पकड़े भी गया हूँ मैं भाई. तो पर इफ यू आर गेटिंग समथिंग, तो मैं हमेशा ही पढ़ने का वो करता हूँ. तो वो डेवलपमेंट वाला हो गया, क्योंकि मैं कोडिंग नहीं कर सकता था अभी. कोडिंग में भाई पूरा प्रॉपर फोकस चाहिए होता है, डीएसए में स्ट्राइवर फॉलो करना होगा. तो वो तो घर आके 1 घंटा 2 घंटा कोडिंग कर लिया, फिर 3-4 घंटे इंटर्नशिप को दे दिया, फिर रात में सेल्फ सोलो प्रैक्टिस वगैरह वो सब कर लिया ऐसा. अब डांस में आई कांट लिव विदाउट डांस. आई जस्ट, दैट्स माय ऑक्सीजन, राइट. तो हर दिन रात में 1 घंटा तो होता ही है. मतलब मेरा प्रॉपर स्पीकर चला के, ये मेरे बगल में रहता है, इसको तो हर दिन मतलब परेशान करके रखा हूं मैंने. पर हाँ, मतलब वो तो है ही. अब इनको जब सिखाना, तुम लोगों को जब क्लासेस लेना होता है, तब इंटर्नशिप का काम, मैं इंटर्नशिप तो फ्लेक्सिबल ही होता है ना, इंटर्नशाला से लिए हो तो मोस्टली अब छोटे छोटे कंपनीज का फ्लेक्सिबल ही होता है. तो वो तुम आगे पीछे करा लो और क्या.
आगे कर लो थोड़ा सा। कभी कभार मैं लैपटॉप लेके जाता था। तुम्हें जानना है कि कौन से प्रोफेसर में तुम क्या कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ प्रोफेसर होंगे जो तुम्हें लैपटॉप खोलने नहीं देंगे, पर कुछ कुछ प्रोफेसर बोलेंगे कि तुम लैपटॉप खोल के रख सकते हो, बट यू नीड टू बी कीप लाइक साइलेंट रहना है। तो जिसमें लैपटॉप खोल सकते हो उसमें जाके मैं काम कर लेता था इंटर्नशिप में, और जिसमें लैपटॉप नहीं खोल सकता था उसमें मैं पढ़ लेता था। तो ऐसे मल्टीटास्किंग, मैंने एकेड्स नहीं पढ़ा। अब लोग बोलेंगे कि फिर कैसे आ जाता था सीजीपीए। एक हफ्ता पहले पढ़ो, एक दिन पहले पढ़ो, टॉपर दोस्तों को पीयर ग्रुप रखो, उनके नोट्स रखो भाई, उनसे नोट्स मिल जाएंगे। और मतलब कभी कभार डाउट्स भी होते हैं तो साथ में पढ़ो, ग्रुप स्टडीज भाई। क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है भाई, ये खुद टॉपर लोग को दोस्त पे रखो। हाँ, और क्या, ये खुद भाई तुम मेरे से कुछ पूछता है अच्छा। नहीं मतलब ये खुद मेरे साथ ग्रुप स्टडी करता है। तो मतलब भाई ग्रुप स्टडी करो तो फिर वो भी मोटिवेशन भी रहता है कि भाई पढ़ रहा है। क्या होता है कि अब मैं दोनों बैठे हैं, अब पढ़ाई कर रहे हैं, मैं हंस देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, वो बोल देता आगे से भाई तू पढ़ नहीं रहा है, तो फिर मैं बोलता ठीक है चल पढ़ के दिखाता है। तो फिर ग्रुप स्टडी करो, एक ऐसा दोस्त भी होना चाहिए, पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ मोरलेस। तो उसके वजह से मोरलेस सीजीपीए, और मुझे तो लगता है एकेडमिक्स इज कॉमन सेंस, लाइक उससे तो हो ही जाता है। थोड़ा बहुत सुन लो क्लास में और थोड़ा बहुत नोट्स रख लो। यू नीड टू नो द की पॉइंट्स, या फिर तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो तुम्हें मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पीवाईक्यूज करके जाओ भाई, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यूज हो गया, या फिर कोई भी प्रोफेसर हो गए जो कि बैक ऑफ द बुक से क्वेश्चन देते हैं, तो वो प्रैक्टिस करके जाओ। पागलों की तरह सब नहीं पढ़ना है। डू स्मार्ट स्टडी फॉर अपना एकेडमिक्स, और बाकी तो स्किल डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा इन द प्रोसेस इफ यू आर डूइंग द मल्टीटास्किंग इन क्लास एंड ऑल। और अपना तुम अगर अपना पैशन है जो डांस है, जो कि तुम उतना प्यार करते हो, तो उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। वो तुम्हें ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस यही बोलना है। Also, I would ask the same question to Anshu sir. You also managed many clubs and academics upskilling. What is your point of view on this? So like when I came just to college, right? Mhm. So first year में I was in 5 different clubs. Mhm. ठीक है. So at that time my main motive was, लॉल मैं भी था यार कितने में। हाँ तू भी काफी में था। तो like for me the main motive was to improve my soft skills, to improve my communication skills, क्योंकि जेई में यार 2-3 साल पढ़ के, ठीक है, बहुत एक्सट्रोवर्ट लोग इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, वो बातें नहीं कर पाते। मेरे में कभी ये एप्लीकेबल नहीं था। तो लाइक एक्सट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट लोग इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो लाइक मेरे साथ वही केस था, मैं बात ही नहीं कर पाता था बाहर। तो मेरा था कॉलेज में आके एटलीस्ट मुझे जैसे डांस परफॉर्मेंसेस मैंने दिए अपने सोलो काफी, तो मेरे मोस्टली फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही थे मेरे मोस्टली सोलो वाले डांस परफॉर्मेंसेस। और लाइक जिससे मेरा स्टेज फियर गया, और मैं क्लब्स में था जिससे मेरा कम्युनिकेशन वाला गया। सॉफ्ट स्किल्स में जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह उसमें मैं गया, जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, बट क्लब्स की वजह से मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने मिला। ठीक है, तो एट दैट टाइम मेरा मेन मोटिव ये था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है। फिर सेकेंड और थर्ड ईयर में आए, एट दैट टाइम माई मेन मोटिव वॉज टू बिल्ड स्किल्स। सो उस टाइम में मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी, ठीक है। और थर्ड फोर्थ ईयर में वॉज टू गेट अ जॉब, टू गेट एन इंटर्नशिप, राइट। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि तुम कौन से टाइम पे क्या चीज करोगे, है ना। तो मेरे साथ वही केस था। तो इट्स लाइक ठीक है, फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, है ना। वैसे ही फेजेस ऑफ कॉलेज लाइफ भी होते हैं, कॉलेज लाइफ। तो वही एक प्लान करो। ऑफ कोर्स प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं चलता, बट लाइक हैव अ गुड प्लान, सो लाइक थिंग्स ऑलवेज वर्क आउट इन द एंड फॉर एवरीवन। सो या, That's what. Okay. Since you've cracked Mercury and you've said the process of interview and coding round, generally I want to ask for any kind of other placements, what would be the interview process and what are the core subjects we should prepare? Where did you prepare from? So like courses preparing one part हो गया इस क्वेश्चन का, और दूसरा है कि प्रोसेस क्या होता है, जनरल प्रोसेस। प्रिपेयरिंग वाला पार्ट मैं बोलूंगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑफ कोर्स, जनरली डीएसए बेस्ड एंड डेवलपमेंट बेस्ड। मरकरी जैसे डेवलपमेंट बेस्ड था। मेरा जो इंटरव्यूअर था वो था डेवऑप्स रोल, मेरा डेवऑप्स रोल है, तो मेरा इंटरव्यू बेस्ड था। अब डेव में ही अगर जाओ तो डेवऑप्स हो सकता है, फुल स्टैक हो सकता है, फ्रंट एंड हो सकता है, बैक एंड हो सकता है, ब्लॉकचेन हो सकता है, एआईएमएल हो सकता है। तो तुम्हें जानना है कि तुम कौन से कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कौन से कंपनी के लिए इंटरव्यू में प्रिपेयर कर रहे हो। तो क्या वो फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट टास्क, क्या वो डीएसए वाला पूछता है या फिर डेव वाला है। जैसे मरकरी इज डेव वाला, तो मैंने डेव डीएसए तब नहीं किया, छुआ नहीं। अब जैसे मतलब इसको पता है, मैंने मरकरी में, इसका भी जैसे 2 बार हुआ था, मेरा भी 2 बार हुआ था। मतलब पहले मैंने दिया था
तीनों क्वेश्चंस थे, तब 3 क्वेश्चंस थे और वो क्लियर हो गया था। उसके बाद इंटरव्यू आया था, इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, पर फॉर सम रीजंस वो समर वो था और फॉर सम रीजंस तब मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो वहां पे इंटरव्यू के बाद आई गॉट रिजेक्शन। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कुछ कंपनी ऐसा भी होता है कि नहीं रिजेक्शन आया तो इसका मतलब ये नहीं होना कि हताश होना है ना, ये प्रोसेस का पार्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो मैंने फिर से सेम कंपनी में अप्लाई किया, फिर से क्वेश्चन आया और इस बार अपडेट हो गया, 2 क्वेश्चन थे। और उसके बाद मेरे को बोला गया कि मेरे को मेरा रेज्यूमे देख के कि हम लोग तुम्हें डेवऑप्स रोल के लिए क्यूबरनेटिस और डॉकर में रेज्यूमे में था, कोड फीस में मैंने अपार्ट फ्रॉम टीचिंग स्टूडेंट्स मैंने काम भी किया था डेवऑप्स पे, तो क्यूबरनेटिस और डॉकर पे, तो वो एक्सपीरियंस मैटर कर गया उनके लिए। तो वो फिर उसके लिए मुझे प्रोसेस किया। तो फिर मेरे को जानना था कि मेरे को डेवऑप्स देना है, नॉट डीएसए, राइट। तो मैं फिर डेवऑप्स वाले रिसोर्सेज देखने लगा। अब डेवऑप्स वाले रिसोर्सेज तुम पीयूष गर्ग हो सकता है डिटेल में तुम, और देखने के लिए मैं क्या करता था, अनअकैडमी से ऑफ कोर्स तुम खरीद सकते हो, यहाँ पे सबको पता ही है द स्मार्ट वे, जुगाड़ू तरीका, तो वो कर लो टॉरेंट भाई, और उससे वगैरह वगैरह पढ़ लिया। और मतलब एक पूरा कोर्स मैंने किया था एक जन का विद प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स करना, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक इंटर्नशिप अगर क्रैक करना चाहते हो, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो बड़े कंपनी का, तुम्हें हैंड्स ऑन पता होना चाहिए कि कब क्या क्वेश्चन पूछ ले। जैसे ये मरकरी वाला जो था मेरे को इंटरव्यू में, ही वाज वेरी नॉलेजेबल एंड ही वाज फ्रॉम आईआईटी केजीपी, एंड इन एवरी स्टेप ही आस्क्ड मी लिटरली कि तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। अगर जिसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ना प्रोजेक्ट का, वही आंसर कर सकते हैं ये सब। तो वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट ये डीएस डेवलपमेंट वाले पार्ट हो, तो सेम फुल स्टैक में भी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो फिर तुम तब अगर तुम्हें कुछ बनाने के लिए बोलते तुम तभी के तभी बना पाओगे भाई, नहीं तो तुम नहीं बना पाओगे। तो ये हो गया डेवलपमेंट वाला। अब डीएसए वाले साइड में आता है तो ऑफ कोर्स स्ट्राइवर इज द गॉड तो स्ट्राइवर से पढ़ो, उसके शीट करो। अब जो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि डीएसए और डेव साथ में कैसे करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट डीएसए डेव साथ में करना बहुत डिफिकल्ट है। कोई इंसान डेव को प्यारा है डेव ज्यादा पसंद है, और नहीं तो डीएसए पसंद है। हम लोग दोनों ही जैसे डेव वाले बंदे हैं, पर डीएसए तो जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट भी करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई मैं एटलीस्ट जो स्ट्राइवर का है ना वो मैं अच्छे से देख लूंगा, उसका शीट मैं 2 बार 3 बार कर लूंगा, ताकि मुझे पैटर्न समझ आ जाए। भाई उसने जो शीट बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन है वो कर लो, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि नया टाइप का क्वेश्चन देख लिया तो उस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन कर लिया। तो मैंने इतना किया। अब कोई सीपी वाला बंदा होगा तो वो इसमें और ज्यादा गाइड कर सकता होगा कि डीएसए एग्जैक्टली कैसे करना है। आई फॉलोड स्ट्राइवर और उसका शीट किया, और मेरे 2 जो इंटर्न्स लगे, सैंडिस्क और मरकरी, इज बोथ इज डेव बेस्ड ओनली, पूरा प्योर डेव बेस्ड। तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि इंटरव्यू क्या क्या होगा, डीएसए बेस्ड हो गया, डेव बेस्ड हो गया। अब रिसोर्सेज भी बता दिया। अब अगर तुम्हारा इंटरव्यू जैसे ऑनलाइन तो वो एक क्वेश्चंस करके तो हो गया, इंटरव्यू में हो सकता है भी बहुत राउंड हो सकता है। जैसे मरकरी में 1 राउंड हुआ, सैंडिस्क में मेरे को 5 राउंड हुए। 5 राउंड में 1 राउंड में मेरे को बेसिक पूछा, एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए बोला, फिर बोला तुम्हें लिनक्स आता है, यहाँ पे छोटे से लिनक्स लिखा था मेरे उसमें, बोला लिनक्स के जितने भी कमांड्स तुम्हें आते सब लिख दो पेपर में। मैं आई एम लाइक ब्रेन क्रैमिंग एंड आई एम लाइक राइटिंग। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक एक बोला, अच्छा ये कुछ स्यूडो या फिर ग्रेप वगैरह लिख दिया, तो इसको ये क्या है, हार्ड वाले एलएस वाले सीडी वो सब तो नहीं पूछेंगे, हार्ड वाले ये क्यों है, तो वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे टाइप के भी हो सकता है, ठीक है। ऑन द फ्लो रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू होता है, कुछ इंटरव्यू होता है जो रेज्यूमे बेस्ड होता है, और कुछ बेस्ड होता है, मतलब ऐसा हो सकता है रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू हो सकता है, डेवलपमेंट में कुछ अभी बैठ के बना हो सकता है, डेवलपमेंट में पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो वो हो सकता है, डीएसए में अभी का भी क्वेश्चन करो वो हो सकता है। डीएसए में तो वही होता है, अभी का भी क्वेश्चन करो, और ऐसा उसके अलावा तो कुछ नहीं, क्वेश्चंस करो या फिर क्वेश्चन का आइडिया बता दो, कोड नहीं हो पाया तो टाइम नहीं है तो फिर आइडिया बता दो, ऑप्टिमाइज जितना ऑप्टिमाइज हो सके वो बता दो। पर डेवलपमेंट में इतने पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो वो हर एक पैटर्न का हर एक तुम्हें रेडी रहना है। तुम्हें रेज्यूमे में तुमने क्या लिखा है वो तुम्हें एक एक छोटा छोटा शब्द भी तुम्हें आना चाहिए भाई, बहुत डिटेल में आना चाहिए। तो वो रेज्यूमे वाला हो गया। अब डेवलपमेंट में नेक्स्ट होता है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट अगर है तो तुम कुछ भी बनाने के लिए बोल देंगे जो कि मीडियम टू इजी रहता है तो तुम बना पाओगे। एंड सेकेंडली पास्ट प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स तो ऑफकोर्स इफ यू आर अ डेवलपर गाय देन यू हैव टू हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स, not only projects, that project should be going into some hackathons, and if you have won
विद दैट प्रोजेक्ट देन तो सोने पे सुहागा, ऐसा वाला सीन है। तो वो अगर सीन है तो फिर अचीवमेंट्स में भी तुम लिख सकते हो कि वो और सेइंग दैट एटीएस स्कोर इज द बिगेस्ट थिंग। भाई मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है, अपना एटीएस स्कोर मुझे पता नहीं था, तो मेरा शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा। तुम्हारा ऑफ कैंपस, टू ऑल द डेवलपर्स आउट देयर, तुम्हारा क्योंकि ऑन कैंपस तो डीएसए वालों को लग जाता है, डीएसए वाले इज लाइक ऑन कैंपस गाइस, राइट? ऑफ कैंपस लगता है, मरकरी जैसे हम दोनों का लगा वो ऑफ कैंपस है। तुम्हारा एटीएस स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑफ कैंपस में, तुम्हें नहीं तो होगा ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि एक पहले मशीन रीड करता है व्हाट इज एटीएस, एटीएस का फुल फॉर्म नहीं याद है, पर एक मशीन जो है वो तुम्हारा पहले रिज्यूमे देखता है, कोई इंसान नहीं देखता, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में आता है रिज्यूमे एक कंपनी को। तो वो ऐसे रिज्यूमे देख के जिसका एटीएस स्कोर 60 प्लस, सेफ हैंड 80 प्लस, 80 प्लस जिनका आता है उसके लिए वो तुम कहाँ पे टेस्ट कर सकते हो तुम्हारे एटीएस स्कोर? रेज्यूमे वॉर्डेड नाम है वेबसाइट का, वहां पे जाके अपलोड योर रेज्यूमे, यूट्यूब वीडियोस देखो कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे तुम बेटर कर सकते हो, वो फर्स्ट स्टेप है। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर तो भाई ये तीनों स्टेप कि रेज्यूमे बेस्ड, फिर प्रोजेक्ट बेस्ड, फिर अपना हैंड्स ऑन वाला ये आता है। सो दिस इज द वे यू नीड टू प्रिपेयर, और रिसोर्सेस तो बता ही दिया है मोर और लेस। और उसके बाद हाँ लास्ट राउंड होता है मैनेजरियल राउंड, उसमें आएगा स्मार्टनेस और तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। ऊपर से मैनेजरियल राउंड में तुम्हें वही कल्चरल फिट वगैरह, मरकरी में जैसे कल्चरल फिट, जैसे इसने बोला कि जापान में वो पूछते उनका 3 है, क्या है, गो वर्ल्ड बी अ प्रो एंड ऑल फॉर वन ठीक है, हम दोनों को रट गया था भाई एक टाइम पे, तो वो हो गया था। तो वो थोड़ा सा उनका जो कंपनी का पेज है, कंपनी का जो क्या करती है कंपनी, वो जाके पढ़ो। ऐसे मुंह उठा के नहीं जाना होता है एचआर में, अरे एचआर तो है पास ही हो जाएगा, नहीं, बहुत लोग आउट होते हैं उसमें। तुम्हें पढ़ना होगा होम पेज में जाके वो क्या करते हैं, उनका अगर मिशन विजन, ठीक है, उनका काम करने का तरीका, वो सब करके तुम्हें प्रिपेयर रहना है फॉर एचआर एंड मैनेजरियल राउंड्स। एंड कभी कभार ग्रुप डिस्कशंस होता है, ग्रुप डिस्कशंस उसके लिए यू हैव टू बी गुड, हैविंग अ गुड सेंस ऑफ आइडिया कि कब बोलना चाहिए। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी को काट रहे हो बोलते हुए, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि तुम एकदम चुप हो बैठ के। तो ग्रुप डिस्कशंस का अलग से यूट्यूब में पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वो तो कोई भी देख लो सर्च करके, अगर तुम्हें ग्रुप डिस्कशंस के लिए प्रिपेयर करना है तो। सो दिस इज मोर और लेस अ जनरल वे हाउ यू प्रिपेयर फॉर कंपनी। So you both are development based people. एग्जैक्टली, सो लाइक क्या, सो लाइक उसमें मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की बातें कर ली यहाँ पे, है ना? तो देखो, डीएसए इज समथिंग जो करना ही है सबको। हम भी डेवलपमेंट करते थे स्टार्टिंग में, बट एक हमारा भी फेज था जब हमने डीएसए किया, सिर्फ डीएसए किया। सो डीएसए इज लाइक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? ओएस डीएसए, राइट? और ऑन कैंपस जो कंपनीज आती हैं दे मोस्टली आस्क डीएसए, ठीक है? तो ओए डीएसए हो गया, और फिर आगे के राउंड में भी डीएसए आते हैं। डेवलपमेंट बेस्ड कंपनीज थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं, मतलब एक्चुअली डीएसए से काफी कम है, काफी कम है। सो स्कोप भी बहुत कम है क्योंकि ऑफ कैंपस होता है वो। एग्जैक्टली, ऑन कैंपस तो ऑन कैंपस के लिए यू नीड टू डू डीएसए। तो डीएसए तो करना ही है, उसको तो तुम एकदम रखो कि ठीक है, दैट आई हैव टू डू, ठीक है? उसके साथ अगर तुम्हें एक नॉर्मल एक रिज्यूमे चाहिए, डिसेंट का, मतलब डिसेंट सा, you can have one internship experience in it and a good DSA knowledge। अगर इतना है ना? और कोर सब्जेक्ट जो भी हैं, ठीक है, वो तुमको लाइक जो भी सब्जेक्ट्स है ना, जो तुम लाइक कॉलेज में पढ़ाते हैं, OS, DBMS, CN और UPS, ये 4 जब वो पढ़ाते हैं उसी टाइम पे तुम उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, तो प्लेसमेंट टाइम पे तुमको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 3 चीजें डीएसए करना ही है। For like development, you can grab one internship, put one experience in it, and if you don't get an internship, you can make a very good project, right? Hackathons must then. Yeah, and the last point is core subject जो तुम academic के साथ ही कर लोगे, तुम इतना resume में रख लोगे, it is a decent resume जो shortlist भी हो जाएगा और तुम interview भी पास कर लोगे। So in my opinion, this is like saying the this, मैंने एक बार बोला बीच में कि मैं फोन चलाता था, फोन में मैं पढ़ता था कोड, वो सब डेवलपमेंट की चीजें और टीचर पढ़ाते थे, पर ये चीज कुछ सब्जेक्ट में करना है। ये जो इसने बोला कि उप्स, डीबीएमएस, इनमें नहीं करना है, इनमें पढ़ना है, इनमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कोड, सब बहुत कंपनीज पूछते हैं। सबसे पहले तो हमारी कंपनी में कॉलेज में डीशॉ ही आता है, कोड पूछ, जो जिसका कोड स्ट्रांग होता है वो लेके जाता है उसको। तो उस टाइम पे कोड अगर पढ़ रहे हो, कोर सब्जेक्ट्स, अगर सीएस वाला कोर सब्जेक्ट्स है वो पढ़ लो भाई। और बाकी कुछ भी ऐसे, मतलब जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि ये उतना फ्रूटफुल नहीं है तुम्हारे लिए, बस ये तुम्हें अपियर करना है, तो फिर उसमें पढ़ सकते हो। Like few people like development, few people like DSA, as you mentioned. एक development में DSA कैसे useful होगा? Exactly. तो देखो,
the thing is, when you go to a company, right, you might not know every tech stack they use, है ना? You need to like उस टाइम तुम्हारे ग्रास्पिंग पावर आ जाती है कि तुम कितना अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हो और कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना? तो व्हेन यू डू डीएसए, ठीक है, उससे तुम्हें क्या मिलता है, कुछ नया सामने आ जाए. डीएसए एवरी प्रॉब्लम इज न्यू, राइट, अनलेस वो लाइक नॉर्मल क्वेश्चन तुमने किए, बट इन इंटरव्यूज इफ अ न्यू क्वेश्चन कम्स, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है वो तो ठीक है, बट तुम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो. तो इंटरव्यूज में डीएसए के टाइम क्या देखते हैं वो, कि तुम कैसा कोड लिख रहे हो, तुम्हारी कोड क्वालिटी, तुम कैसा लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुम कितना ऑप्टिमाइज्ड वे में लिख रहे हो, है ना? ये 3 चीजें हैं. अब सेम चीजें डेवलपमेंट में होती हैं. ऐसा नहीं है कि तुम पूरा डीएसए वाला कोड डेवलपमेंट में लिखोगे, ऐसा बहुत कम होता है, राइट. मेन होता है तुम्हारा लाइक थिंकिंग, कि तुम उस वे में कैसे जा रहे हो. सो दैट्स व्हाट हेल्प्स इन डेवलपमेंट. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज आस्क डीएसए. Exploring different domains is really crucial in college life. How did you explore different domains? Especially you explored blockchain domain. How did you explore blockchain domain and resources on that? What was your inspiration to हाँ. incline towards blockchain? सो पहले तो इट वाज लाइक मैं कॉलेज आया तो सभी डेव कर रहे थे, तो बहुत कम लोगों को पता है, पर मैंने एकदम स्टार्टिंग में हमारा, क्योंकि हम लोग कोविड बैच थे, हम लोग ऑनलाइन में मैंने फ्लटर स्टार्ट किया था. अब फ्लटर में पीयर ग्रुप भी कम था और उतना नया लैंग्वेज था, तो आते ही कॉलेज में मैंने देखा डेव कर रहे सारे, तो मैंने डेव करना स्टार्ट कर दिया इमीडिएटली. अब डेव करते करते तो मैंने थोड़ा बहुत HTML तक मुझे आता था, क्योंकि मेरे को CSE था, मेरा मतलब कंप्यूटर साइंस था मेरा कॉलेज स्कूल में, तो HTML तो आ ही जाता है. अब CSS में मैंने ये गलती नहीं किया, CSS में बहुत ज्यादा टाइम नहीं किया, ऑल्दो मैंने बूटस्ट्रैप में बहुत ज्यादा टाइम किया, वो तो अलग बात है. बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है, मैं उसको, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग गया कि ये भाई क्या है, मतलब CSS लिखना भी नहीं पड़ रहा और मतलब स्टाइलिंग भी हो रहा है, पर वो गलती नहीं करना है. CSS HTML जल्दी जल्दी खत्म करो करके फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी वो खत्म करके मैंने जावास्क्रिप्ट पे अपना लॉजिक बिल्डिंग जो है डेव में, वो मैंने स्ट्रॉन्ग किया बहुत अच्छे से. वो स्ट्रॉन्ग किया, फिर मैंने इमीडिएटली बैकएंड में शिफ्ट हो गया. बैकएंड में नोड.जेएस, मोंगोडीबी, है ना, एक्सप्रेस.जेएस, वो सब एकदम अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना लिए, अच्छे से सीख लिया. अब सीखते सीखते ही मैंने इंटर्नशिप मेरे को मिल गया मैंगोजेली में, जो कि पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट था और बेसिक सा जो मर्न स्टैक होता है पूरा मर्न के ऊपर ही था. तो मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को सीखते ही रह गया. ये ट्यूटोरियल हेल वाला प्रॉब्लम में ही तुम एक टेक स्टैक में पड़े रहोगे. एक टेक स्टैक में फंसने का मेन रीजन इज ट्यूटोरियल हेल. तुम्हें ट्यूटोरियल हेल से बचना है. उसके लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी सीख के, थोड़ा बहुत सीख के इम्प्लीमेंट करो. रीड आर्टिकल्स, मीडियम ब्लॉग्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ के खुद से आइडिया सोच के खुद से एक प्रोजेक्ट बनाओ. अगर बन भी गया थोड़ा सा, तुम्हें लग रहा है मैं इंटरमीडिएट स्टेज हूँ, मुझे नहीं आता है, भाई ढूंढना चालू कर दो इंटर्नशिप, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करो. तुम कितना भी सोच लोगे उतना रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं आएगा. एक्चुअली इंडस्ट्री गिव्स यू रियल लाइफ प्रोजेक्ट. तो तुम्हें सपोज कर लो कि मुझे आता है थोड़ा सा, मतलब अभी अभी मैंने 2 महीने पहले मैंने जस्ट सीखा, 2 महीने में मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया, फिर यू आर गुड टू गो फॉर इंटर्नशिप करो और अपना एक्सपीरियंस लो. अब फिर एक्सपीरियंस, वो ऑटोमेटिकली इंटर्नशिप का काम करते करते मेरा वो एक्सपीरियंस आ गया और मैं और ग्रो करता गया उस टेक स्टैक में, फुल स्टैक में, और ग्रो करता गया. अब बाकी डोमेन, अब फिर मेरे को था कि हैकाथॉन्स भी जाना है, क्योंकि नहीं तो फिर अपस्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैसा आने लग गया, इंटर्नशिप मिल गया, फुल स्टैक में रखे रहे, बस तुम्हारा हो गया. तुम्हें अपस्किल करते रहना है अगर तुम्हें अच्छा वो चाहिए होगा तो फिर वही मैं अपना कॉलेज में क्लासेस चलते चलते अपस्किल करता था. तो मेरा वही था कि कॉलेज टाइम, मतलब जब कॉलेज सुबह था, सुबह वाला टाइम मेरा अपस्किल टाइम होता था. प्रोफेसर पढ़ाते थे, पर मैं वो सब पढ़ता था जो मुझे नहीं आता. फुल स्टैक नहीं पढ़ता था ऑफकोर्स, तब मैं ब्लॉकचेन पढ़ता था, डॉकर, क्यूबरनेटिस, ये सब पढ़ता था, ठीक है. और वो पढ़ के फिर अपस्किल हो गया, और फिर मेरे को शाम में आके मेरा फुल स्टैक का इंटर्नशिप का काम हो गया, तो उसमें मैं फुल स्टैक में भी ग्रो कर गया. तो ऐसे मैंने अपना मैनेज किया. तो यू नीड टू हैव अ सेपरेट टाइम फॉर योर अपस्किल, यू नीड टू हैव अ सेपरेट टाइम फॉर योर अपना क्या कहता है, जो करंट वेब टेक स्टैक है उसमें ग्रो करना काम, इंटर्नशिप वाला काम, प्रोवाइडेड अपस्किल. और ये इसके बीच में डीएसए को नहीं भूलना है, 2 घंटा 1 घंटा हर दिन का डीएसए को भी देना है. Right. Anshu sir, at starting you mentioned that referral से apply किया Mulcari में. I know how much networking is important in this whole software journey. So how did networking help you, and what are the interesting ways to network apart from connecting with seniors through college?
ओके ओके LinkedIn might help through this. या आई मीन देखो जब फर्स्ट ईयर में आते हैं बहुत लोग सीनियर से डरते हैं राइट कि उनके रूम में नहीं जाना ये सब नहीं करना ठीक है बट लाइक दैट्स हाउ आई लाइक मेट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सीनियर्स ऑफ आवर कॉलेज है ना जो भी डिफरेंट पोजीशंस में हैं तो हमारे जो कॉलेज के सीनियर्स हैं वो काफ़ी अच्छे पोजीशंस में हैं है ना हमें पता भी नहीं है लेकिन लाइक पास्ट के एल्यूमिनाइज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं ठीक है सो मतलब मैं सीनियर्स को ऐसे ही जाना था कि भाई लाइक उनका थोड़ा बहुत काम करके उनके लिए कुछ बाहर से लेकर आके ठीक है I guess clubs also. क्लब्स हाँ लाइक द सेकंड थिंग इज क्लब्स एंड ऑल ठीक है तो क्लब्स में मैं सीनियर्स को जाना है ना दैट्स वन ऑफ द वेज और जो मैं एल्यूमिनाइज की बात कर रहा था तुम्हें किसी कंपनी में रेफरल चाहिए ना तो यू कैन ऑलवेज पिंग योर एल्यूमिनाई राइट दे विल बी हैप्पी टू गिव अ रेफरल एनी टाइम ठीक है सो दैट वाज वन ऑफ द वे So guys, club is the safest way of communicating with seniors. अगर तुम्हें वो अनसेफ लगता है तो क्लब ज्वाइन कीजिए और क्लब से सीनियर्स को जाइए तो सेइंगनेस मतलब तुम्हें भी जानना है कि हर सीनियर कौन से सीनियर के पास जाना है कौन से सीनियर के पास नहीं बहुत फेकू लोग भी होता है ना क्या बोलता है वो सब भाई क्लाउड कंप्यूटिंग पैरेलल क्वांटम कंप्यूटिंग लोगों को पता ही नहीं होता क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है वो लोग पेलते रहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग ये है वो है उनको क्यों ही नहीं पता क्यों करते हैं भाई भाई वो फेंके रहता है उनको आता वाता कुछ नहीं है कुछ मतलब सीनियर्स होते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जिसको जो थोड़ा खाली है अंदर से मतलब वो एक बंगाली में सेइंग है फाका कोलशी बाजे बेशी इट्स बेसिकली खाली जो मटका होता है ना वो ज्यादा बचता है बड़ा मटका से तो उससे बच के रहना है किसके पास तुम्हें जाना है वो तुम्हारे ऊपर है ना तो और कनेक्टिंग तो लिंक्डइन तो इट्स देयर क्लब हेल्दी वे एंड यू नीड टू ऑल्सो गो लिंक्डइन में जाके तुम रिक्वेस्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया तो वो तो है ही तुम उनका रेज्यूमे देखो भाई रेज्यूमे अगर भरा पड़ा है तुम्हें लग रहा है जेन्युइन बंदा है और तुम उसको मतलब दोस्तों के साथ भी अगर मतलब कभी मैं जैसे मैं किसी से बात कर अरे तू उन सीनियर को जानता है जैसे कोई एक ऐसा हो गया जैसे मेरा कोई एक दोस्त है दिव्यांश तो उसका एक और उसका दोस्त है ऋषभ तो वो मेरे को जानता है राइट तो फिर वो बंदा दिव्यांश फिर उससे पूछा कि अच्छा तुम उसको जानते हो फिर वो मेरे से कनेक्ट हुआ राइट तो ऐसा होता है कि तुम अपने दोस्त से भी पूछो कि तुम अपना जो सीनियर है उनको जानते हो कि नहीं तो उनसे फिर मांगो कि इज ही द राइट ट्रस्टेबल पर्सन इज ही द पर्सन हुम आई शुड टॉक अबाउट या फिर वही वो है कि एम्प्टी वो है ज्यादा फेकू वाला है फेकू बहुत है भाई उनसे बच के रहना है Very valuable. भाई सच बात है सच कड़वी होती है भाई सबके पास नहीं जाना होता If you could go back in time, what would you advise your first year yourself? Anything. So like for me I would say just do what you were doing ठीक है explore stuffs like you been to clubs वो important part है clubs का मतलब college life का sorry कि तुम क्लब्स में जाओगे चीजों को एक्सप्लोर करोगे इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ जॉब राइट कॉलेज इज अबाउट ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट सो क्लब्स में जाओ जो कर रहे हो वो करो ठीक है दैट इज वन ऑफ द थिंग्स बाकी जो मैं लाइक खुद पे इम्प्रूव करना चाहूंगा वो मैं यही बोलूंगा कि लाइक इफ यू आर एक्सप्लोरिंग सम स्टफ्स राइट इट्स नॉट अबाउट कि तुमने किसी की 1 घंटे की वीडियो देख ली तो तुमने एक्सप्लोर कर लिया वो नहीं होता ऐसे किसी को कोई चीज पसंद नहीं आएगी कि कोई अपना इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाएगा यू जस्ट नीड टू गिव अ गुड टाइम टू अ पर्टिकुलर टेक स्टैक if you want to explore that particular tech stack just like make a little project or just have a good overview of what that tech stack does ठीक है that is what called exploring not just watching 30 to 40 minutes of video है ना so that was one of the mistakes I did in the starting so just that मेरे को तो बहुत डिटेल में बोलना है क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट ईयर अगर प्लान नहीं है सेकंड ईयर प्लान नहीं है तो यू आर गॉन भाई तो ये अगर मेरे को अगर अपने आप को बोलना है फर्स्ट सेमेस्टर मैंने अगर मुझे होना होता मैं बहुत मजे से डांस करता अपना कनेक्शन बनाता तो मतलब कनेक्शन तुम बन सकते हो सीआर बन के जो कि कर सकते हो तुम नहीं तो डांस करो क्लब्स ज्वाइन करो क्लब्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और क्लब्स के लिए काम अच्छे से करो सीनियर्स से अच्छे से बनाओ फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हें कुछ ऐसा नहीं है है ना उतना लोड नहीं है तो वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में वो करो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो लाइक एक्सप्लोर में तुम वो कर सकते हो कि थोड़ा सा देख लिया कि क्या मतलब इस स्टेज में तुम्हें ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे एआई जाना है ब्लॉकचेन जाना है एआई ब्लॉकचेन नहीं बोल रहा डीए से जाना है कि वो जाना है एआई ब्लॉकचेन बाद में आएगा पर पहले तुम्हें इस स्टेज में आना है कि मुझे डीए से पसंद है या फिर आई एम अ डेव गाय यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ व्हिच पार्ट ऑफ द लाइक जो
रेस है उसमें तुम कौन से साइड में पढ़ते हो, वो लाइकिंग क्या है, ये फर्स्ट सेम में करना है। सेकंड सेम तक तुम्हें क्लियर आइडिया होना चाहिए कि तुम क्या हो, डीएसए गाई हो या फिर डेवलपर गाई हो। उस पे फिर पागलों की तरह काम करो, उसमें बहुत काम करो, अपस्किल करो, अपना करते रहो करते रहो करते रहो। थर्ड सेम में प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स। और थर्ड सेम में तक आते आते, एज आई ऑलवेज से यू, इतना क्लब्स में नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा क्लब्स, तो वो करके और थोड़ा सा काम काम करो, तो क्लब वाला, तो तब तक तुम्हारा कनेक्शन जो बनना था ना भाई वो बन गया। अब तुम्हें इतना सेंस आ गया, तुम लोग थर्ड सेम में आ गए हो कि किसके साथ जाना है, किसके साथ बात करना है, एज आई जस्ट सेड थोड़ी देर पहले, किसके साथ बात करना है और किसको अवॉइड करना है, राइट। तो वो थर्ड सेम में हो गया और प्रोजेक्ट बना दिए। फोर्थ सेम में क्या किया, हैकाथॉन्स करो, हैकाथॉन्स करो, इंटर्नशिप ढूंढते रहो। तुम्हें 2 सेम लग जाएंगे इंटर्नशिप ढूंढते ढूंढते, ऐसा नहीं कि इस सेम में बैठा अप्लाई किया और कल ही मिल जाएगा। पागलों की तरह अप्लाई करना होता है, 50-60 में इंटर्नशाला में पागलों की तरह अप्लाई करना होता है। 10-15 दिन 30 दिन तक कुछ रिप्लाई नहीं आता है, उसके बाद जाकर रिप्लाई आएगा। तो फोर्थ सेम में स्टार्ट सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप, है ना, स्टार्ट सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप इफ यू आर डेवलपर गाई। और डीएसए में भी इंटर्नशिप हो सकता है, तो डीएसए स्पेसिफिक कंपनीज में वो be get added to various groups, very important, various WhatsApp groups like कृष्ण कुमार का हो सकता है या फिर अर्श गोयल का हो सकता है, ठीक है, उनमें जॉब अपडेट्स आते हैं। तो वो फोर्थ सेम से प्लीज अप्लाई करो, प्लीज उनमें अप्लाई करो। उनमें थोड़ा कम होता है पर वो सब तो है ही। इंटर्नशाला, वेल फाउंड, वी वर्क रिमोटली, ऐसे बहुत वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम्हें छोटे मोटे कंपनीज के वो मिल जाएंगे, तो उसमें अप्लाई करो। और ये फोर्थ सेम में करते रहो, फिफ्थ सेम में कंटिन्यू करते रहो अलोंग विथ अब फिफ्थ सेम तक। फिफ्थ सेम में आते ही तुम जो अपना जो टेक स्टैक था ना, वो जो तुम कर रहे हो ग्रो, उसके अलावा साइड टेक स्टैक लाओ। दिस इज द स्टेज वेयर यू नीड टू डिसाइड शुड आई गो फॉर ब्लॉकचेन और एआई, या फिर आई एम जस्ट ब्लॉकचेन एआई, वो मेरा थॉट है, वो मेरा वो पर्सपेक्टिव है। तुम्हारा कुछ और हो सकता है ना, शुड आई गो फॉर डेवऑप्स और एआरवीआर। तो जो भी है इस टाइम पे स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफाई करो अपने आप को। तो फिफ्थ सेम में वो किया। फिफ्थ सेम सिक्स सेम तक इंटर्नशिप करो, सेवेंथ सेम में तक अच्छा डीएसए में हो जाओ। इतना टाइम है, धीरे 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 डीएसए करते रहो और अच्छा हो जाओ डीएसए में। थोड़ा थोड़ा, बहुत पागलों की तरह नहीं करना है। अगर तुम डेवलपर गाई हो तो, अगर तुम डीएसए गाई हो तो अच्छे से डीएसए करो। जो वो पाता है वो तो एक टीसीपी गाई अच्छे से बता सकता है, मैं डेवलपर के बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं ये सब बोल रहा हूँ कि ये करो वो करो, भाई उसके बीच में नहीं हो पाता इतना डीएसए पागलों की तरह करना, है ना। तो फिर थोड़ा 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 डीएसए करता रहो। 7 तक आते आते अगर तुम कंसिस्टेंट रहे फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर टू 7th सेमेस्टर, तुम हो जाओगे धीरे धीरे, बेयर मिनिमम करके भी। 7th सेमेस्टर आया, ऑन कैंपस कंपनी आया, तुम्हारे पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम गुड डिसेंट डीएसए में हो, आराम से फोड़ लोगे ऑन कैंपस। नहीं फोड़ पाए, तुम डेवलपर गाई हो भाई, तुम ऑफ कैंपस फोड़ लोगे। तो 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर शुड बी, 8th सेमेस्टर तो खैर बहुत लेट हो जाता है, 7th सेमेस्टर इज द मेन सेमेस्टर, और 6th सेमेस्टर भी यू शुड सर्च फॉर योर कंपनीज, अपने कंपनीज में अप्लाई करना। एंड वेयर विल यू गेट अप्लाइड, मतलब कहाँ पे अप्लाई करोगे, वही व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए जो मैंने बोला, कुछ कुछ नाम, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, डिस्कॉर्ड में भी ग्रुप्स होते हैं, डिस्कॉर्ड के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, पर ये ग्रुप्स में प्लीज ज्वाइन होकर रखना, ठीक है। Yeah. Finally, the last question for you guys. What's the next plan for you guys? Like, what are the specific goals you have for you in your tech journeys? हाँ, इतना तो नहीं सोचा अभी। इसका ये सोचा, मैं अगर बोलूं प्लान्स एज ऑफ ना उतना कुछ है नहीं। सैनडिस्क में मेरा डेटा इंजीनियर रोल है, तो क्योंकि आई एम नॉट इनटू डेटा इंजीनियरिंग AI/ML वाला, इट्स जस्ट बिकॉज माय स्पीकिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की वजह से मिला है मेरे को। तो मुझे वो भी एक्सप्लोर करना है। अगर मेरे को जॉब मिला है, मेरे को पीपीओ ऑलवेज देयर, सैनडिस्क का पीपीओ कंफर्म्ड है, इट्स विंटर इंटर्न प्लस फुल टाइम। तो ऑफ कोर्स उसको लाइटली नहीं लेना है, मैं उसको, उसके ऊपर मैं काम करूंगा, क्योंकि ये भी एक डोमेन है, लेट मी एक्सप्लोर, सो आई एम इन एक्सप्लोरेटिव मोड। तो वो मुझे एक्सप्लोर करना है एक तो, एंड प्रोवाइडेड मुझे मरकरी के लिए भी प्रिपेयर करना है। डेवऑप्स तो आता है, पर डेवऑप्स में आई एम इनटू मोर AWS एंड मरकरी वर्क्स ऑन GCP, गूगल क्लाउड, एंड गूगल क्लाउड में क्यूबरनेटिस। तो वो सब थोड़ा सा नर्चर करके जाना है ताकि वहां पे जाके काम अच्छे से कर पाऊँ। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लाइक थोड़ा सा काम फोकस, इंडस्ट्री में काम अच्छे से कर पाऊँ, वही अभी के लिए नियर फ्यूचर में ये फोकस है। फार फ्यूचर के लिए कंपनी में बहुत अच्छे से काम करना, और मे बी बहुत बाद में जाके स्विच करना, बट डिपेंड्स कि मेरे कंपनी का अगर वर्क कल्चर अच्छा है तो मैं वहां पे भी सेटल कर सकता हूँ। उसमें
मतलब अपस्किल कर सकता हूँ अपना पोस्ट जो भी है SD1 SD2 SD3, तो वो तो बहुत फार का है अभी के लिए. इट्स लाइक वट एवर आई हैव गॉट द जॉब, उसके लिए मुझे काम करना है. और मुझे ये लगता है अभी पैसा भी आ रहा है और जॉब भी लग गया है, तो अभी थोड़ा सा घूमना वूमना वो सब भी है, मतलब फन साइड भी है. फन रुकना नहीं चाहिए. मैं आई एम अ वेरी बैलेंस पर्सन, मैं दोनों साथ में करता हूँ. तो फन और ये काम, ये दोनों ही अभी मोर ऑर लेस प्लान है. फॉर मी लाइक मैं अगले 10 साल का या 20 साल का नहीं पता मुझे, वही. बट अगले 2-3 साल का मुझे ये है कि जब मैं अपनी इंटर्नशिप्स करने गया था, सो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल जो लाइक हु आर वेरी इन्फॉर्मेटिव. जब वो बोलते हैं व्हेन दे स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर लाइक कॉन्सेप्ट और एनीथिंग कि ये टिकट है, इसमें ऐसे होगा, दे आर सो लाइक दे हैव सो मच नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, है ना. So like when they speak, everyone listens, right? So that's what I want to become, कि मैं एटलीस्ट इतना नॉलेजेबल हो जाऊं, whatever like in whatever tech stack I'm doing, मैं इतना knowledgeable तो हो जाऊं कि एटलीस्ट when I speak, like people around me learn something new from me. So yeah, that's my motive. That's great. Okay, thank you for your time, sir. Thank you for Same coming, to you. and stay tuned for more hype episodes.